شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے بچتے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی منکوحہ لونڈیوں کے، کیونکہ ان پر اس بات پر کوئی الزام نہیں۔ پس جو کوئی اس کے علاوہ عورتوں وغیرہ کے خواہاں ہوں تو ایسے لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور وعدے کا پاس رکھتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی وارث اور مستحق ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام رحم مادر میں رکھا، پھر ہم نے نطفے کو خون کے لوٹلے کی شکل میں پیدا کیا، پھر لوٹلے کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت دے دی۔ تو مبارک ہے وہ اللہ جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم نے ضرور مرنا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارا، پھر اس کو ہم نے پانی میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے ختم کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور ایک اور درخت پیدا کیا جو طور سینا میں بکثرت ہوتا ہے، کھانے والوں کے لیے تیر اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی غور کا سامان ہے، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان جانوروں پر اور کشتی پر تم کو سوار کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جو کافر تھے کہ یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، ہم نے ایسی باتیں اپنے اگلے بزرگوں سے تو کبھی نہیں سنی، اس آدمی کو تو جنون ہو گیا ہے، سو تم اس کے بارے میں کچھ وقت انتظار کرو۔ نوح نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہمارے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور میں پانی جوش مارنے لگے تو ہر جاندار میں سے جوڑا جوڑا نر و مادہ دونوں کشتی میں داخل کر لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے اس کے جس کی نسبت بات پہلے سے طے ہو چکی ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جو ظالم ہے، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں تو کہو کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور کہو اے میرے رب مجھے کشتی سے برکت کی جگہ پر اتارنا، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، بے شک اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں، اور ہم تو آزمائش کرنے والے تھے۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم کو پیدا کیا، اور انہی میں سے ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا، اس رسول نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دیا تھا، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، وہ اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت کی تو یقیناً نقصان میں رہو گے۔
क्या वो तुमसे ये वादा करता है कि जब तुम मर जाओगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाओगे तो तुम्हें दोबारा निकाला जाएगा? बहुत ही बईद है, बहुत ही बईद है ये वादा जो तुमसे किया जा रहा है। हमारी ये जिंदगी तो महज दुनिया ही की जिंदगी है कि हम मरते और जीते हैं और हमें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। ये तो एक ऐसा आदमी है जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है और हम तो इस पर ईमान नहीं लाएंगे। इसने कहा है मेरे रब तू मेरी मदद कर कि इन्होंने मुझे झुठलाया है। हुक्म हुआ कि थोड़ी ही देर के बाद ये पछताएंगे। फिर एक जोरदार आवाज ने इनको आ पकड़ा, सो हमने इनको रेजा रेजा कर दिया। बस जालिमों पर लानत है। फिर हमने इनके बाद और कौमों को पैदा किया। कोई उम्मत अपने मुकर्ररा वक्त से ना आगे निकल सकती है और ना पीछे रह सकती है। फिर हम अपने रसूलों को मुसलसल बेचते रहे। जब कभी किसी कौम के पास इसका रसूल आया तो इन्होंने उसको झुठलाया। सो हम भी यके बाद दीगरे इनको हलाक करते गए और इन्हें किस्से कहानियां बना दिया। बस लानत है इन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते। फिर हमने मूसा और इसके भाई हारून को अपने अहकाम और रोशन दलील के साथ भेजा फिरौन और इसकी जमात की तरफ, मगर इन्होंने तकब्बर किया और वो बड़े सरकश लोग थे। बस वो कहने लगे क्या हम अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान लाएं, हालांकि इनकी कौम के लोग हमारे गुलाम हैं। तो इन्होंने दोनों पैगंबरों को झुठलाया। बस वो लोग हलाक कर दिए गए। और बेशक हमने मूसा को किताब दी ताकि वो लोग हिदायत पाएं, और हमने इब्ने मरियम और इसकी माँ को लोगों के लिए बड़ी निशानी बना दिया और इनको एक बुलंद मकाम पर जगह दी जो रिहाइश के लायक जारी पानी वाली थी। ए रसूलो, तुम पाक अशिया खाओ और नेक अमल करो। तुम जो कुछ करते हो मैं इसे जानता हूँ, और बेशक तुम्हारी ये उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, सो मेरी नाफरमानी से डरो। फिर लोगों ने दीन के मामले में अपने आप को जुदा जुदा कर लिया। हर एक ग्रोह अपनी ही बात पर खुश है। सो आप इनको एक मुद्दत तक इनकी इसी गफलत में पड़ा रहने दीजिए। क्या वो ख्याल करते हैं कि ये जो हम इनको माल और औलाद दिए जाते हैं तो गोया हम इनकी बेहतरी के लिए जल्दी कर रहे हैं? ऐसा नहीं, बल्कि वो समझते ही नहीं। यकीनन वो लोग जो अपने रब की हैबत से डरते रहते हैं, और जो लोग अपने रब के अहकाम पर ईमान लाते हैं, और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, और वो लोग जो कुछ दे सकते हैं देते रहते हैं, और इनके दिल इस बात से डरते हैं कि इन्हें एक दिन अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। यही लोग नेकी की तरफ दौड़ते हैं और यही इसमें सबकत ले जाने वाले हैं। और हम किसी शख्स को इसकी इस्तात से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और हमारे पास वो किताब है जो ठीक ठीक अमलनामे बताने वाली है, और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। लेकिन इनके दिल इसकी तरफ से गफलत में पड़े हैं, और इसके अलावा कुछ और बुरे काम भी हैं जो ये लोग करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम इनके मालदारों को अजाब में गिरफ्तार करेंगे तो इस वक्त चिल्ला उठेंगे। कहा जाएगा कि आज मत चिल्लाओ, क्योंकि हमारी तरफ से तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। मेरे अहकाम तुम्हें पढ़ पढ़ कर सुनाए जाते थे और तुम उल्टे पांव वापस लौट जाते थे। तकब्बुर करते हुए तुम अपनी मजलिसों में कुरान की शान में बेहुदा बातें करते थे। क्या इन्होंने इस कलाम पर गौर नहीं किया? उनके पास कोई ऐसा इल्म आ गया है जो इनके अगले बुजुर्गों के पास नहीं आया था, या इन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना जिसकी वजह से वो इनके मुनकिर हैं, या वो ये कहते हैं कि उसे जनून है? नहीं, बल्कि वो इनके पास हक व सदाकत के साथ आया है, और इनकी अक्सरियत सच्ची बात को पसंद नहीं करती। और अगर दीन हक इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे तो आसमान और जमीन और जो कुछ इनमें है दरहम बरहम हो जाए। बल्कि हमने इनके पास इनकी नसीहत भेज दी है, मगर वो अपनी नसीहत से मुंह फेर रहे हैं।
क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कोई मुआवजा तलब करते हैं? मुआवजा तो आपके रब का सबसे बेहतर है और वो बेहतरीन रज़ाक है। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सीधी राह की तरफ बुलाते हैं, और बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते राह रास्त से हट गए हैं। और अगर हम इन पर मेहरबानी करें और इनकी तकलीफ को दूर कर दें तो फिर भी ये अपनी सरकशी पर अड़े हुए भटकते रहेंगे, और बेशक हमने इनको अजाब में गिरफ्तार किया, फिर भी ये अपने रब के आगे न झुके और न आजिज़ी की, यहाँ तक कि अब हमने इन पर शदीद अजाब का दरवाजा खोल दिया तो फिर वो इसमें ना उम्मीद होकर रह गए। और वो वही तो है जिसने तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए, लेकिन तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। और वही तो है जिसने तुम्हें जमीन में फैला रखा है और इसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। और वही तो है जो जिंदा करता है और मारता है, और रात दिन का घटना और बढ़ना भी इसी के इख्तियार में है। फिर क्या तुम समझते नहीं? बल्कि ये लोग वैसी ही बातें करते हैं जैसी अगले करते थे। कहते हैं कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे? बेशक ये वादा तो हमसे और हमारे बड़ों से इससे पहले होता चला आया है। ये तो महज गुज़िश्ता लोगों के किस्से कहानियां हैं। इनसे पूछिए कि जमीन और जो कोई इसमें है किसकी मलकियत है। अगर तुम्हें इल्म हो तो बताओ इसके जवाब में। वो फौरन कह देंगे कि अल्लाह की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि फिर क्यों तुम लोग नसीहत कबूल नहीं करते? आप सल्लम इनसे पूछिए कि 7 आसमानों और अर्श अजीम का रब कौन है? वो फौरन कहेंगे अल्लाह। फिर इनसे पूछिए तो क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं? पूछिए कि वो कौन है कि जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वो पनाह देता है और इसके मुकाबले में कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। अगर तुम्हें इल्म हो तो बताओ। वो फौरन कहेंगे कि अल्लाह। कहे फिर क्यों मशहूर दीवाने बन रहे हो? बल्कि हमने इनको हक बात पहुंचा दी है और वो यकीनन झूठे हैं। अल्लाह ताला ने किसी को औलाद नहीं बनाया और ना इसके साथ कोई और माबूद शरीक है। यूं होता तो हर खुदा अपनी मखलूक को लेकर चल पड़ता और वो एक दूसरे पर चढ़ाई कर देते। अल्लाह ताला इनके नकास से पाक है जो ये लोग बयान करते हैं। वो ढकी छुपी और आश्कारा बातों को जानता है और मुशरिक और जो कुछ इसके साथ शरीक ठहराते हैं वो इससे बालातर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ए मेरे रब, अगर आपने वो अज़ाब मुझे दिखलाना हो जिसका इनसे वादा किया जा रहा है तो ए मेरे रब मुझे इन जालिमों के साथ शामिल ना फरमा। और बेशक हम इस बात पर कादिर हैं कि जिस अजाब का हमने इनसे वादा किया है वो आपको दिखा दे। बस बुराई का मुकाबला अच्छे सलूक से कीजिए और जो कुछ ये बयान करते हैं वो हमें खूब मालूम है। और दुआ कीजिए कि ऐ मेरे रब, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और ऐ मेरे रब, मैं इस बात से भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आए, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत आ जाती है तो कहता है परवरदिगार मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि मैं जिस दुनिया को छोड़ आया हूँ इसमें जाकर नेक काम करूँ। हरगिज नहीं, ये महज एक बात है जिसे वो कह रहा है और इनके आगे एक पर्दा है इस वक्त तक जब इन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। सो जब सूर फूका जाएगा तो इस रोज ना बाहमी रिश्तेदारी काम आएगी और ना कोई किसी को पूछेगा। तो जिनका तराजू का पल्ला भारी होगा वो कामयाब होंगे और जिनका पल्ला हल्का होगा तो वो वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान में रखा। वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। दोज़ख की आग उनके चेहरों को झुलस देगी और वहाँ इनके चेहरे बिगड़ जाएंगे और कहा जाएगा क्या हमारे अहकाम तुम्हें पढ़ पढ़ कर सुनाए नहीं जाते थे?
और तुम इनको झुठलाते रहते थे। वो जवाब देंगे कि हमारे रब, हमारी बदकिस्मती ने हम पर गलबा पा लिया था और हम गुमराह हो गए थे। ऐ हमारे रब, हमें इसमें निकाल दे। अगर हम दोबारा ऐसा करें तो बेशक हम जालिम होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि दूर हो जाओ और मुझसे बात ना करो। हकीकत ये है कि मेरे बंदों का एक ग्रोह था जो ये दुआ करता था कि ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए, बस हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम कर, और तू बेहतरीन रहम करने वाला है। तो तुमने इनका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि इन्होंने तुम्हें मेरी याद भुला दी और तुम इन पर हंसा करते थे। मैंने आज उनको उनके सब्र का बदला ये दिया है। अल्लाह फरमाएगा कि जमीन पर तुम कितने साल रहे हो। वो कहेंगे कि हम एक दिन या एक दिन से भी कम रहे हैं। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। फरमाएगा तुमने बहुत थोड़ी मुद्दत कयाम किया। काश तुम ये बात दुनिया में जान लेते। क्या तुम ख्याल करते हो कि हमने तुम्हें बेफायदा पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? वो अल्लाह जो बादशाह हकीकी है, इसकी शान बुलंद है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो इज्जत वाले अर्श का मालिक है, और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारता है जिसकी इसके पास कोई दलील भी नहीं, तो इसका हिसाब इसके रब के हाँ होगा। यकीनन काफिर निजात नहीं पाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और रहम कर, और तू ही बेहतरीन रहम करने वाला है।